بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، رحمت عالم مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ قسمتی کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کسی کتاب میں نام لکھیں تو کیا لکھیں؟ پورا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھیں۔ اکثر بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ صرف صاد لکھ دیتے ہیں، تو یہ نہیں لکھنا چاہیے بلکہ پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا چاہیے۔ مدنی کے ناظرین اور پیارے بچوں، جب بھی لکھیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں۔ تو مدنی کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم نے درود پاک لکھنے کی برکت سنی کہ جب تک اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے کیا کرتے رہیں گے؟ استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آج بھی مختلف سیگمنٹس ہوں گے، تلاوت بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی اور انشاءاللہ الکریم ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال یہ بھی سیگمنٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ ایک کہانی بھی ہم سنیں گے اور کوئز ٹائم یعنی بچوں سے سوالات بھی ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اب پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چاہیے کہ ناظرین اور پیارے بچے، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی
محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو عشق نبی کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی ضمانت عشق نبی کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی ضمانت اس سے بڑھ دست طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو اس سے بڑھ کر دست طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو رش کے جنا طیبہ کی گلیاں ہر ذرہ فردوس بداماں رش کے جنا طیبہ کی گلیاں ہر ذرہ فردوس بداماں چاروں طرف انوار کا عالم چاروں طرف انوار کا عالم رحمت کی برسات نہ پوچھو چاروں طرف انوار کا عالم رحمت کی برسات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا
والد میں صرف اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے، عشق نبی میں روتے روتے، کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، عشق نبی میں روتے روتے، کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی میری خیرات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مسلمان بھی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ بندش ہے کہ ناظرین و پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور بندش ہے کہ ناظرین، آج ہم ایک کہانی سنیں گے اور کہانی بڑی ہی مزیدار ہے۔ اس کہانی سے ایک سبق بھی ملے گا جسے ہم نے یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو بچوں چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پیارے بچے، ایک لکڑہارا یعنی وڈ کٹر کام سے بہت بھاگتا تھا اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہر وقت شکایت ہی کرتا رہتا تھا کہ پتہ نہیں آج اچھی لکڑی ملے گی یا نہیں، میں گھر جلدی جاؤں گا کہ نہیں، یا اور جنگل میں لکڑیاں کاٹنے میں اس کا دل بھی نہیں لگتا تھا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ایک بار جب یہ جنگل کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ چڑیا اپنے گھونسلوں سے باہر آئی ہیں۔ ان کے پاس نہ کچھ سامان تھا اور نہ کھانا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومتی اور دانہ کھاتی رہیں، اور پھر جب واپس آئیں تو ان کے منہ میں دانے تھے جو انہوں نے اپنے بچوں کو کھلائے۔ یہ دیکھ کر اس شخص کی بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھے محنت کرنی چاہیے اور اللہ پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دو باتیں اس کی سمجھ میں آئی کہ پہلی بات محنت کرنی چاہیے اور دوسری بات کہتی اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ مجھے اچھا رزق دے گا۔ پیارے بچوں اور بندش ہے کہ ناظرین، ہر چیز کا مالک اللہ پاک ہے، ہر چیز کا مالک اللہ پاک ہے، اور ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر ایسا توکل یعنی بھروسہ کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جیسے ایک پرندے کو رزق ملتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے۔ پیارے بچوں اور بندش کے ناظرین، ہمیں اپنے کاموں میں کامیابی پانے کے لیے اللہ پاک پر ہی یقین رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی اللہ پاک سے کامیابی کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر نیک و جائز کام میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور بندش کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کنیز فاطمہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے، واہ، چھوٹے منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے، کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، میں یہ سچی ہے، کوئی کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے، واہ، چھوٹے منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے، کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، میں یہ سچی ہے، کوئی غلط کرتا ہے کچھ کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے، واہ، چھوٹے منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے، کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، میں یہ سچی ہے، کوئی غلط کرتا ہے کچھ تو یہ اسے سمجھاتی ہے، کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے،
बच्ची है। क्या कर रही थी आप? कुछ भी तो नहीं आप ही, कुछ नहीं कर रही थी। ये आपने पीछे हाथ में क्या छुपाया हुआ है? कुछ नहीं आप ही, बस ऐसा ही। खतीजा, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या छुपाया हुआ है आपने? दिखाया अपना हाथ। तो ये उसे समझाती ये क्या है? ये विग है। जिन लड़कियों के बाल छोटे होते हैं वो इसे पहनती हैं, तो पता भी नहीं चलता कि उनके बाल छोटे हैं। लेकिन ये आपके पास आई कहाँ से? ये मैं फरवा से चेक करने के लिए लाई हूँ। इसे पहनकर चुटिया बांध के देखूंगी कि मुझ पर कैसी लगती है। खतीजा, पहली बात तो ये है कि आप अभी छोटी हैं, इस तरह की चीजें छोटी बच्चियों के लिए नहीं होती। दूसरी बात ये है कि बड़ों को भी इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इस्लाम में किसी इंसान के बालों को इस तरह लगाने से सख्ती से मना किया गया है। हदीस शरीफ में ऐसी लेडीज पर लानत की गई है जो किसी इंसान के बालों की चुटिया बनाकर अपने बालों में जोड़ ले। लेकिन आप ही, ये तो नकली बालों से बनी हुई है। ये सच्ची है। सही कह रही हैं आप, ये असली बाल नहीं है। लेकिन अभी आपको इस तरह की चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। क्यों आप ही? आपको पता है ना मुझे लंबे बाल रखने का कितना शौक है। खतीजा, अभी आप छोटी हैं और छोटी बच्चियों पर ये चीजें बहुत ओवर लगती है, इसीलिए ना ही उन्हें इस तरह की चीजें यूज करनी चाहिए और ना ही मेकअप करना चाहिए। जब आप बड़ी हो जाएंगी तो तब इन चीजों को इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं। देखिएगा, जब आप बड़ी हो जाएंगी तो आपको इन चीजों के लिए कोई भी मना नहीं करेगा और फिर तो आपके कान भी छिदवाए जाएंगे ताकि इनमें आप बूंदे वगैरह पहन सके। ठीक है? अच्छा, फिर मैं अपनी पसंद की ज्वेलरी खरीद कर पहनूंगी। जरूर पहनिएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमेशा लेडीज की ज्वेलरी पसंद कीजिएगा, क्योंकि आजकल तो जेंट्स की ज्वेलरी भी मार्केट में मिलती है, वो भी कान छिदवा कर बालियां पहनते हैं। आजकल मिलने लगी है बाजार में, लेकिन ये बहुत बुरी बात है। जेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। जेंट्स का नाक या कान छिदवाना और इनमें बालियां और दूसरी ज्वेलरी पहनना बिल्कुल भी जायज नहीं। अच्छा जी, ये चीजें सिर्फ लेडीज पर ही सूट करती है और इन्हीं के लिए है। जेंट्स को लेडीज वाले काम नहीं करने चाहिए। अल्लाह पाक इन बातों से नाराज होता है। अभी आप मेरे साथ आए, मम्मा ने हमारे लिए जूस बनाया है और वो आपको बुला रही है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है बुजुर्गों के अकीदे। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सेगमेंट बुजुर्गों के अकीदे में एक बहुत ही बड़े बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुबारक अकीदा सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, शेख अब्बुल हसन कुरैशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मैं वलियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास इनके मदरसे में मौजूद था कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक बिजनेसमैन आया जिसका नाम अबू गालिब फजलुल्लाह बगदादी था। और इसने गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज़ की, ऐ मेरे सरदार, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाना जान आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स को दावत पे बुलाया जाए इसकी दावत कबूल करनी चाहिए, और मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, आप मेरे घर पर दावत पर तशरीफ़ ले आएँ। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, जी हाँ, आ जाऊँगा। शेख अब्बुल हसन कुरैशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैं गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ उस बिजनेसमैन अबू गालिब के घर पहुंच गया, और जब हम घर में आए तो देखा बगदाद के उलमाए किराम भी उस घर में मौजूद हैं। हमारे आने के बाद दस्तरखान बिछाया गया जिसमें तमाम मज़ेदार खाने मौजूद थे। इसके बाद वो दो आदमी एक बड़ा संदूक बॉक्स ले आए और इसे दस्तरखान पर एक तरफ रख दिया। फिर बिजनेसमैन अबू गालिब ने कहा, इजाज़त है, खाना शुरू कीजिए। उस वक्त गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपना सर झुकाए हुए थे। आपने खाना नहीं खाया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खाना ना खाने की वजह से किसी ने भी खाना नहीं खाया। शेख अब्बुल हसन कुरैशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना सर उठाकर मेरी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, वो संदूक यानी बॉक्स उठा लाइए। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फरमान पर हमने संदूक आपके सामने लाकर रख दिया।
फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुक्म दिया कि संदूक यानी बॉक्स को खोला जाए। हमने बॉक्स खोला तो देखा कि इसमें बिजनेसमैन अबू गालिब का बेटा मौजूद था, जो पैदाइशी अंधा यानी ब्लाइंड था। वो बहुत ज़्यादा बीमार था। संदूक खुलवाने के बाद गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस बिजनेसमैन अबू गालिब के बेटे से कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह पाक के हुक्म से खड़ा हो जा। शेख अब्दुल हसन कुरैशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हमने देखा कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कहने की देर थी कि बिजनेसमैन अबू गालिब का बेटा बिल्कुल ठीक होकर खड़ा हो गया और इसकी आंखों की रोशनी भी आ चुकी थी और ऐसा लगता था कि कभी बीमार हुआ ही नहीं था। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वाक़े से गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना ये अक़ीदा साबित कर दिया कि अल्लाह पाक ने उन्हें बीमारों को शिफा देने की ताकत अता फरमाई है। तभी तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक ब्लाइंड और बीमार बच्चे को अल्लाह पाक की अता से सेहतमंद बना दिया। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने अपने वलियों को ऐसी पावर्स दी हैं कि वो जो चाहे अल्लाह पाक की अता से कर सकते हैं। जैसा कि हमें इस वाक़े से मालूम हुआ, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें बुजुर्गान दीन अड़े रहमा के अक़ीदों पर साबित कदमी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स बंदी के नाज़रीन, आज हमने सुना बुज़ुर्गों के अक़ीदे में गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अक़ीदा। और गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की यूँ कहा जाए तो एक करामत भी थी कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसी के घर दावत पे गए, फिर जब खाना खाने की इजाज़त दी गई तो उसके बाद गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना सर झुका लिया। किसी ने भी खाना शुरू ना किया क्योंकि हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खाना शुरू ना फरमाया था। फिर कुछ देर बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सर उठाया और कहा कि वो संदूक यानी जो बॉक्स है उसे ले आइए और उसे खोलिए। उसमें बिजनेसमैन का एक बेटा था जो कि बीमार था और अंधा था। अब वो बीमार और अंधा जो बच्चा था उसको गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह पाक के हुक्म से खड़ा हो जा। तो गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फरमाते ही वो बच्चा खड़ा हो गया और ऐसा लगने लगा कि वो बच्चा कभी ना बीमार हुआ था और उसकी आंखों की जो रोशनी थी वो भी वापस आ चुकी थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर भी हाज़िरी की शहादत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किशबंदी के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है सिविक सेंस। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के हमारे सेगमेंट सिविक सेंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, सिविक सेंस एक अच्छे काम का नाम है और हमें चाहिए कि हम हर काम जिम्मेदारी से करें, चाहे अम्मी अब्बू का कहना मानना हो या फिर मदरसे का सबक याद करना हो या स्कूल का होमवर्क मुकम्मल करना हो। बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी आदत के बारे में बताएंगे और वो है दरख्त लगाना। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे घरों के आसपास और हमारे घरों में दरख्त और पौधे बहुत कम होते जा रहे हैं। बच्चों, बताएं दरख्त का क्या इस्तेमाल होता है? चलें मैं आपको बताता हूँ। दरख्त की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये ऑक्सीजन देता है जो सांस के लिए जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड खींचता और माहौल को साफ करता है। एक अच्छी बात कि दरख्त साए देते हैं जिसके नीचे बैठकर गर्मी का एहसास कम हो जाता है। दरख्त भी हमारी तरह जानदार होते हैं। दरख्त हमारे माहौल को साफ सुथरा रखते हैं और तो और ये तेज आवाज के शोर को कम करते हैं। पीने के पानी की क्वालिटी बेहतर बनाते हैं। दरख्त के स्ट्रक्चर में उसकी जड़ें, तने, शाखें, पत्ते, फूल और फल शामिल हैं। दरख्त की लकड़ी से फर्नीचर, मदरसे के डेस्क, स्कूल डेस्क, मेज, कुर्सी, अलमारी, कागज, खेलों का सामान, यहाँ तक के माचिस भी बनाई जाती है। इन्हीं दरख्त की लकड़ी को जलाकर उस पर खाना पकाया जाता है। रेलगाड़ी का डब्बा, बस, ट्रक, कश्ती, पुल वगैरह इन सब में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे फ्रूट भी दरख्तों पर उगते हैं जिनमें आम, कीनू, आड़ू, जामुन, नारियल वगैरह। हमारे घरों, गलियों और रोड पर दरख्त बहुत कम हैं और कई दरख्त सूख गए हैं या काट दिए गए हैं। बच्चों, आज से दरख्त लगाने की नियत कर लें। इंशाल्लाह आप इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। पहले पौधा लें
क्योंकि पौधे को बढ़ने और दरख्त की शक्ल आने में 2 से 3 साल लगते हैं और मुकम्मल बड़ा होने में तकरीबन 30 साल लगते हैं। आप पसंद करें कि कौन सा दरख्त आप लगाने वाले हैं और मैं भी दरख्तों के बारे में जानकर अपनी पसंद का दरख्त तलाश करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा सिविक साइंस में एक अच्छे टॉपिक पर बात होगी। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए कुछ सवालात करते हैं। पहला सवाल बताइए कि खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से किन को मुसलमानों का पहला खलीफा बनाया गया? जी चलें बताएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी चलें माशाअल्लाह। इनको दें जरा माइक दें। भाई लग रहे हैं आप लोग तो। हज़रत अबू सिद्दीक़ हज़रत ताला भाई हैं आपके वो? माशाअल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। माशाअल्लाह। तीनों का जवाब दुरुस्त है। हर सहाबी ये नबी सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। 4 याराने नबी जन्नती जन्नती। हज़रत सिद्दीक़ भी और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती। उस्मान गनी फातिमा और अली जन्नती जन्नती हैं। हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती। वालिदैन नबी हर ज़ौजाए नबी है। मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, अगला सवाल बताइए कि हमें किस हाथ से लेना और देना चाहिए? जी चलें बताएं। सीधे हाथ से। सीधे हाथ से। जी आगे नहीं। सीधे हाथ से। जवाब इनका दुरुस्त है। जी माशाअल्लाह। अगला सवाल बताइए कि कौन सी नमाज में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जी चलें बताएं। 3 वितर। 3 वितर। चलें आगे नहीं। नमाज वितर। माशाअल्लाह। जी नमाज वितर। जी चलें। नमाज वितर। सवाल क्या है? देख के पूछता हूँ। कौन सी नमाज में दुआएं कुनूत पढ़ी जाती है? माशाअल्लाह। इन्होंने सवाल भी सही पहचाना और जवाब भी दुरुस्त दे दिया। माशाअल्लाह। सबका जवाब सबका जवाब। अगला सवाल बताइए कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स पाक किस इस्लामी महीने में आता है? यहाँ पे कोई जवाब देगा? रबीउल आखिर। माशाअल्लाह। रबीउल आखिर इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अगला सवाल, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अपनी मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी किए थे? वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अपनी मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी किए थे? जी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अहमद भाई क्या कहते हैं आप? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के प्यारे नबी हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जवाब सबका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ पर कुछ सवालात हुए और बच्चों ने जवाब दिए। आइए बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है मैनर्स। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेगमेंट मैनर्स के साथ मैं हूँ फुज़ैल अत्तारी। प्यारे बच्चों, गुड मैनर्स में से एक अहम बात ये भी है हम किसी का मजाक ना उड़ाएं। प्यारे बच्चों, ये बहुत बुरी बात है। इससे दूसरों का दिल दुखता है और किसी का दिल दुखाना बहुत गुनाह की बात है। आमतौर पर हम दूसरों की नकल उतार कर मजाक उड़ाते हैं। किसी के कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, किसी के जूतों के कलर और बस्ते वगैरह के डिजाइन का मजाक उड़ाते हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत गुनाह की बात है। एक लम्हे के लिए आप सोचें कि अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो फिर आपको कैसा लगेगा। आए मजाक उड़ाने वालों का अंजाम सुनते हैं।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन लोगों का मजाक उड़ाने वाले के सामने जन्नत का एक दरवाजा खोला जाएगा और कहा जाएगा कि आओ आओ, तो बहुत बेचैनी और गम में डूबा हुआ इस दरवाजे के सामने आएगा, मगर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचेगा वो दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर एक दूसरा जन्नत का दरवाजा खुलेगा और उसको पुकारा जाएगा, आओ यहाँ आओ। चुनाचे ये बेचैनी और रंजो गम में डूबा हुआ उस दरवाजे के पास जाएगा तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ मामला होता रहेगा यहाँ तक के दरवाजा खुलेगा और पुकार पड़ेगी तो वो नहीं जाएगा। इस तरह वो जन्नत में दाखिल होने से महरूम रहेगा। अल्लाह पाक हमें किसी का मजाक और दिल दुखाने से बाज रखे और हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला शाह के घर दो सरा है कभी बिकबरिया सबसे आखिरी नबी है शफीर उल वरा अकीदा सब सहाबा का अकीदा अहले बैत का एतिकाद फातिमा है यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी अकीदा वासे बाग का अकीदा अहले बैत का बच्चा बच्चा बोल उठा है अकीदा ए रज़ा सबसे आखिरी नबी नारा अत्तार का सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी। प्यारे बच्चों और कृष्ण के नाज़रीन, आज ये बढ़ते हैं अब अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आज के सेगमेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ मैं हूँ ज़ेर रज़ा। आज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से जो टॉपिक हम शामिल करेंगे वो है फायर एंड बर्न सेफ्टी। बच्चों, फायर एंड बर्न सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी वजह से हमारे घर, स्कूल, मदरसा या ऐसे किसी प्लेस जहां हमारा ज्यादा टाइम स्पेंड होता हो और वहां आग लग जाए और हमें अपने आप को सेफ रखते हुए वहां से एग्जिट भी करना है, इसके लिए एक अहम चीज ये होती है कि हमें अपने घर, स्कूल, मदरसे या फिर पब्लिक प्लेस पर मौजूद फायर अलार्म, फायर सेफ्टी टूल्स एंड फायर एंड बर्न सेफ्टी रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए कि हम कभी अगर ऐसी डेंजरस सिचुएशन में हो तो हमें अपने आप को उस सिचुएशन में सेव रखने का प्रोसेस मालूम हो, ताकि हम सब फायर एंड बर्न से महफूज रह सकें। अब वो ऐसी क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमें लाजमी याद रखनी चाहिए? आइए हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि किस एलिमेंट की वजह से फायर यानी आग लग सकती है, लिहाजा आपने ऐसे एलिमेंट्स को यूज नहीं करना। अगर कोई दूसरा ऐसा कर रहा हो तो उसे भी मना करना है। ये एलिमेंट्स लाइटर, माचिस, पेट्रोल या कोई भी डिफरेंट फायर टूल हो सकते हैं जिन्हें हम बच्चों ने यूज नहीं करना है। हमें जलते हुए चूल्हे, कैंडल्स, हीटर, बारबेक्यू ग्रिल या इस तरह की दूसरी चीजों से दूर रहना चाहिए और अपने छोटे बहन भाइयों को भी इनसे दूर रखना चाहिए। हाथ मुंह धोने या नहाने से पहले गर्म पानी का टेम्परेचर अच्छी तरह चेक कर लें। आपको अपने किसी दोस्त, अपने घर के बड़े या फैमिली मेंबर का फोन नंबर याद होना चाहिए या अपने घर, स्कूल, मदरसे का एड्रेस भी याद होना चाहिए, ताकि ऐसे सिचुएशन में आप इन्हें फोन कर सकें। या फिर आपको फायर डिपार्टमेंट का फोन नंबर याद हो जहां आप फोन करके इनकी हेल्प ले सकते हैं। घर, स्कूलों, मदरसों में फायर अलार्म लगे होते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि फायर अलार्म बजने की सूरत में हमें क्या करना चाहिए और इसके बजने का क्या मतलब है। फायर अलार्म बजने का मतलब ये है कि इस जगह कहीं आग लगी है और हमें
फौरन वहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अगर आप अपने स्कूल मदरसे में स्मोक देखें या फील करें तो फौरन अपने बड़े या टीचर को इन्फॉर्म करें ताकि किसी भी नुकसान से महफूज रहें। आग लगने के बाद अगर आप इस प्लेस पर या इसके करीब कहीं मौजूद हैं तो फायर एंड बर्न सेफ्टी के रूल फॉलो करते हुए फौरन इस प्लेस से एग्जिट करें और इस जगह से जितना दूर हो सके हो जाएं। याद रखें, आप जहां भी हो वहां स्मोक भर जाने या आग लगने की सूरत में डर के छुप नहीं जाना बल्कि वहां से बाहर निकलना है और फिर वहां जाके अपने बड़ों से कांटेक्ट करना है। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा और जाना कि फायर एंड बर्न सेफ्टी में अपने आप समेत दूसरों को सेव करना कितना जरूरी है। लिहाजा आपने भी आज से इन सब रूल्स को फॉलो करना और दूसरे बच्चों को भी फॉलो करवाना है। तो ये थी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से हमारी इंफॉर्मेशन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बच्चों की शान, बच्चों की शान। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल और इस सेगमेंट में हमारे साथ पंजाब के कुछ शहर हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, फैसलाबाद, झंग, कसूर, पाकपतन शरीफ, मुल्तान और बहावलपुर और उस शरीफ। ये कुछ शहर हैं। इन बच्चों में से मैं किसी बच्चे को भेजूंगा जो कि किसी शहर पर मैग्नेट को थ्रो करेगा। अब जिस शहर पे आया, जैसे जंग पे आ गया, तो जंग में जिन बुजुर्ग रहमतुल्लाह की ताला का मज़ार होगा, वो उन बुजुर्ग रहमतुल्लाह की ताला के बारे में हम सुनेंगे। किनसे? सुफियान भाई से। चलें बढ़ते हैं और चलें आप आ जाएं जी, वहाँ पर है जी, चलें शुरू करें। चलें मुल्तान जी। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मुल्तान शरीफ के एक अजीम बुजुर्गों में से एक फेमस बुजुर्ग शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह रमज़ानुल मुबारक की 27 तारीख यानी 3 जून 1171 में पैदा हुए। आप सहाबी रसूल हज़रत हब्बार बिन असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्म हासिल करने के लिए कई मुल्कों का सफ़र फरमाया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बगदाद शरीफ पहुँचे तो वहाँ हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हुए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल सफ़र की 7 तारीख यानी 21 दिसंबर 1262 में हुआ। आपका मज़ार मुबारक मुल्तान शरीफ पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, माशाअल्लाह हमने सुना हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह की ताला अलैह के बारे में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें उनके मज़ार पुनर्वार पर हाज़िरी की सआदत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किस्मती चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शान। बच्चों की शान, बच्चों की शान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।